So good afternoon students. So in the last lecture what we have done the numericals on integration, differentiation, calculus method and the relative velocity. In the last lecture we have done the relative velocity, expression for relative velocity and graphs of relative velocity and numerical depend upon the relative velocity. So today we are going to start a new topic. This is your vector. It's very important topic for 11th and 12th class. Vector. Everybody know that we are having two quantity. One is the scalar quantity, second is the vector quantity. Scalar quantity can be defined as the physical quantity which we are having only magnitude, not any direction. That is called scalar quantity. For example, speed, distance is a scalar quantity, whereas vector quantity which has both magnitude as well as direction, this is called vector quantity. Displacement, velocity, this is the vector quantity. So in the vector quantity it is mandatory the direction of any physical quantity. So deeply we will study in this topic vector all the physical concepts, types of vector and all mathematical and theoretical explanation of the vector. So let me start the topic vector. So firstly you should write the definition of vector quantity. I will send you the difference of vector and scalar also. So vector quantity, any quantity which has both direction as well as magnitude is called vector quantity. Displacement, velocity, acceleration, force, all are vector quantities because we are having a specific direction. Suppose I am saying that I am going with a velocity of 5 meter per second. It means I am specifying my direction. And if I am saying that I am going with a speed of 5 meter per second, it means I am not specifying my direction. So this is the basic difference between a scalar and a vector quantity. So here we will do the vector quantities. We will study the mechanism of the vector quantity deeply. So firstly we will do the representation of vector. Suppose this is a displacement, straight line, and this is your A and this is your B, and arrow is on B. Maybe arrow यहाँ भी हो सकता है, arrow, ठीक है, ये आपका क्या है, B पॉइंट है, ठीक है, मैंने एरो यहाँ लगा दिया, आपका एरो यहाँ भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं टेल और ये होता है आपका हेड. हम टेल से हेड पे जाते हैं. तो रिप्रेजेंटेशन अगर इसको ए वेक्टर से डिनोट करेंगे तो इस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन होगा. आपका ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब पहला कॉन्सेप्ट है. दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि हाउ कैन यू रिप्रेजेंट ए वेक्टर. तो अगर आपकी कोई डिस्प्लेसमेंट है, कोई भी आपकी बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में जा रही है आपकी, तो यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ वो क्या होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा, और ये एरो क्या होगा, आपकी डायरेक्शन होगी, और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से आपका वेक्टर बनेगा. तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी वेक्टर की. ए के ऊपर ये आपका एरो का निशान, ठीक है. तो ये आपका हो गया वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन. ओके, आफ्टर द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ वेक्टर. देखिए वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के बाद हमारे वेक्टर के क्या आते हैं, टाइप्स आते हैं. तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में ये तो आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई. टाइप्स ऑफ वेक्टर में काफी टाइप्स हैं वेक्टर के. सबसे पहले हम करेंगे आपका फर्स्ट इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर क्या होंगे, डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हैं. समझ लीजिए कि इक्वल वेक्टर क्या होंगे. सपोज कीजिए आपका एक वेक्टर ए है. अब इसकी लेंथ क्या बताएगी, ये आपका क्या हो गया, टेल, और ये क्या हो गया आपका हेड. तो इसकी लेंथ क्या बताएगी, आपकी लेंथ आपकी बताएगी कि इसका कितना मैग्नीट्यूड है
और एरो क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ है। और दूसरा वेक्टर है बी, ये इसका क्या होगा, टेल, ये क्या उसकी होगी, हेड। इसकी लेंथ क्या बनाएगी, मैग्नीट्यूड, और एरो क्या बताएगा, डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर दोनों का सेम मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। सो आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, टू वेक्टर्स whose magnitude is same as well as direction is also same, then these vector that in the category of what, equal vector. So these are equal vector. It means I can write that A vector should be equal to B vector. Why? Because अब मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस से। ये आपका मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो A का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, B के मैग्नीट्यूड के इक्वल। ये तो मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल है क्योंकि लेंथ दोनों की इक्वल है। इसकी 5, सपोज कीजिए इसकी 5 मीटर लेंथ है तो इसकी भी 5 मीटर लेंथ है, और डायरेक्शन भी दोनों की सेम है। एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम। सो दीज आर, इसके कारण ये आपके क्या है, इक्वल वेक्टर। तो सबसे पहले आप इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद आप एग्जांपल बनाएंगे जिस तरीके से मैंने बनाया, ठीक है, और उसके बाद आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद इक्वल वेक्टर के बाद हम सेकंड वेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वेक्टर क्या होगा आपका, जो सेकंड वेक्टर है अनइक्वल वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। देखिए अनइक्वल वेक्टर का मतलब तो क्या हुआ, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर। देखिए अनइक्वल जो वेक्टर है उसका मतलब क्या हुआ, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, ये इसका हेड है और ये इसका टेल है, और दूसरा वेक्टर ये है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, ये बी वेक्टर है। अब इसमें आप क्या देखते हैं, ये लेंथ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड, ये लेंथ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड। हालांकि डायरेक्शन सेम है बट ये वेक्टर क्या है, अनइक्वल वेक्टर, ठीक है। उसके बाद अनइक्वल वेक्टर के बाद मैंने क्या लिखा, अपोजिट वेक्टर। तो इसको मैं बना देता हूं इक्वल, ये इसको मैं बना देता हूं इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। इसका क्या मतलब है, इक्वल अनइक्वल तो समझ गए। इक्वल अपोजिट वेक्टर का मतलब है एक वेक्टर आपका ए वेक्टर ये है, ये इसका टेल है, ये इसकी हेड है, और बी वेक्टर कौन सा है, ये इसका क्या है, टेल, और ये क्या है, इसकी हेड, ये क्या है, बी वेक्टर। बट आपका क्या है, जो बी वेक्टर है वो आपका ये डायरेक्शन है, मतलब इसका हेड ये है और टेल ये है। इससे क्या हुआ, देखिए लेंथ, मैग्नीट्यूड ए जो है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ इसकी है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब ए वेक्टर दैट शुड बी इक्वल टू, जो ए वेक्टर होगा वो होगा माइनस ऑफ बी वेक्टर, मतलब आपका एरो तो यही रहेगा, आगे माइनस आएगा। इसको बोलेंगे इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। तो डेफिनेशन बना सकते हो आप इक्वल एंड अपोजिट। अनइक्वल वेक्टर की तो डेफिनेशन ये हो गई, टू वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, ओके, एज वेल एज डायरेक्शन इज ऑल्सो डिफरेंट। इट मे बी डिफरेंट, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट मैग्नीट्यूड आपके डिफरेंट हो गए आपके, तो वो क्या हो गया, आपके अनइक्वल वेक्टर। और इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर क्या हो गए आपके, अनइक्वल वेक्टर में तो आपका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, टू वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, ओके। Direction can be same, can be opposite, but in the equal and opposite vector, two vector whose magnitude is same but direction is opposite to the each other, मतलब एक की डायरेक्शन जो है वो दूसरे के से क्या होगी, अपोजिट होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आपका इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। तो देखिए इसमें आपका लेंथ आपकी दोनों की सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन आपकी क्या है, अपोजिट, तो उसको बोलेंगे इक्वल एंड अपोजिट। ये सेकंड में ही आएगा आपको। फर्स्ट आप लिखेंगे, आपका जो फर्स्ट है वो तो क्या है, आपका
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। उसके बाद आप इक्वल वेक्टर लिखेंगे, फिर सेकंड में अनइक्वल वेक्टर लिखेंगे, ओ एंड इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, मतलब एक ही हेडिंग बनाएंगे सेकंड में आपके अनइक्वल वेक्टर एंड इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, क्लियर। अब जो थर्ड नंबर पे आता है वो आपका एक और वेक्टर है आपका, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे आपका पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर, ठीक है। जो ये पोलर वेक्टर है, जो पोलर वेक्टर है आपका, ये क्या होगा, ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन सेम हो, किसमें, मोशन की डायरेक्शन में। ए वेक्टर व्हिच डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। सपोज डिस्प्लेसमेंट, ए वेक्टर whose direction is same as that of direction of motion. For example डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या है, अगर मैं इधर जा रहा हूं, ये आपका हेड है, ये टेल है, और डायरेक्शन क्या होगी, ये ए वेक्टर है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा है, मतलब मोशन आपका इसी डायरेक्शन में जा रहा है, बॉडी कहां ऊपर, इसी डायरेक्शन में, तो आपकी वेक्टर की भी डायरेक्शन कौन सी होगी, यही होगी, तो इसको बोलेंगे हम पोलर वेक्टर, ओके। जो नेक्स्ट है वो है कोलिनियर वेक्टर। देखिए कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे, दो वेक्टर जिनकी सेम लाइन हो, किस तरीके से, सपोज कीजिए एक वेक्टर है, ये इसकी हेड और ये इसका टेल है और ये इसका हेड है, ये वेक्टर है ए, ठीक है, और ये वेक्टर है बी, ये इसका टेल, ये इसका हेड, तो ये वेक्टर कौन सा होगा, बी वेक्टर। ये एक ही लाइन में है, जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड उनका सेम हो, मैग्नीट्यूड मे बी सेम और मे नॉट बी सेम। यहां पर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम नहीं है, क्योंकि देखिए जितनी लेंथ ये है इतनी लेंथ ये नहीं है, तो ये क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर। एक तो केस फर्स्ट ये है जिसमें आप इनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। दूसरा केस क्या है, केस सेकंड, अगर एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और इसी के सामने वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर भी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। इसमें भी आपका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तीसरा केस क्या है, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, ठीक है, और बी वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर, मतलब ये एंटी पैरेलल वेक्टर है, इनका भी मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये भी क्या होंगे, आपके कोलिनियर वेक्टर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोलिनियर वेक्टर्स को क्या करोगे, डिफाइन। तो पहले आप डेफिनेशन लिखिए उसके, और उसके बाद ये डिफरेंट केसेस आप उसको बनाइए। डेफिनेशन क्या होगी, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स इफ देयर लाइंस आर सेम, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। तो ये आपके सारे क्या है, कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या है, अगर मैं 2D में लेता हूं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस आपका, ये 0 और ये आपका y एक्सिस। अगर दो वेक्टर है, ये आपका a वेक्टर है और ये आपका b वेक्टर है। अब देखिए इन दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, तो इनको क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। द वेक्टर्स whose initial points are same, magnitude may be same may not be same। यहां पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, जितनी लेंथ ये है इतनी लेंथ ये नहीं है, तो ये क्या होंगे आपके को इनिशियल वेक्टर। ये दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं आपके को इनिशियल वेक्टर। सो दिस इज को इनिशियल वेक्टर। आफ्टर द कोलिनियर वेक्टर एंड को इनिशियल वेक्टर, और नेक्स्ट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, यहां मैं लिख देता हूं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होगा, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, यानी 1 होगा। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा,
1 होगा और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो आपके गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है। द वेक्टर whose magnitude is unity and whose direction is same as that of a given vector, this is called unit vector। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। देखिए आपके जो 3D है, 3D किस तरीके से, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। यूनिट वेक्टर को हम a कैप से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है a वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब a वेक्टर 3D में किस तरीके से लिखा जाता है, अगर मैं लिखूं 2i प्लस 3j प्लस 5k, ये आपका a वेक्टर है। तो ये i, j और k का मतलब क्या है, देखिए i जो है वो x एक्सिस पे आता है, j जो है वो y एक्सिस पे आता है और k आपका z एक्सिस पे आता है। 2i का मतलब कितना है, ये आपका 2i है, 3i, 3j का मतलब ये 3j और 5k का मतलब ये कितना है, 5k है आपका। ये वेक्टर कितना है आपका, 5k। तो इसका हम अब यूनिट वेक्टर किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला a वेक्टर, a यूनिट वेक्टर इक्वल टू a मैग्नीट्यूड डिवाइड a वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब a वेक्टर तो हमारे पास है बट मैग्नीट्यूड हमें नहीं निकालना आता, तो मैग्नीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला है वो सुन लीजिए। देखिए i के साथ जो है और j के साथ जो है, जो k के साथ है, तो a वेक्टर का, a मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो आपका किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम, वो करते हैं इस 2 का स्क्वायर i के साथ जो है प्लस इस 3 का स्क्वायर प्लस k के साथ जो है 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। इस तरीके से हम a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 4 प्लस 9 प्लस 25, ठीक है। तो ये 38 अंडर रूट हो गया आपका, ये कितना हो गया 38 अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे कि यूनिट वेक्टर किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो यूनिट वेक्टर होगा, अब फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है हमें। फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू, ए यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट करते हैं, ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर तो कितना है आपका 2i प्लस 3j प्लस 5k, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कितना हो गया अंडर रूट 38, ये हमने फाइंड आउट कर दिया। तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 2 बाय अंडर रूट 38 i प्लस 3 बाय अंडर रूट 38 j प्लस 5 बाय अंडर रूट 38 k। तो ये आपका क्या आ गया, आपका a यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आ गया आपका, और हमने a यूनिट वेक्टर इसमें इस तरीके से निकाल लिया। अब हम एक सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, a वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k, यानी यहां माइनस हो गया, पहले प्लस था, तो वही सेम रूल लगाएंगे, a वेक्टर, a यूनिट वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर i के साथ जो है प्लस 3 का स्क्वायर प्लस जो इसके साथ, अब माइनस साइन लेंगे, माइनस 5 का स्क्वायर। तो देखिए मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होता है, तो यहां पर भी पॉजिटिव ही आएगा आपका आंसर। तो ये a वेक्टर कितना हो गया यूनिट वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड a वेक्टर का वही 4 प्लस 9 प्लस 25, तो ये कितना होगा a मैग्नीट्यूड 38 का अंडर रूट। अब आप इससे लिखेंगे कैसे, तो a यूनिट वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस 5k डिवाइड बाय अंडर रूट 38। अब की बार ये इस तरीके से लिखा जाएगा 2 बाय अंडर रूट 38 ऑफ i प्लस 3 बाय अंडर रूट 38 ऑफ j माइनस 5 बाय अंडर रूट 38 ऑफ k। तो ये आपका क्या हो गया यूनिट वेक्टर। तो आज हमने डिफरेंट टाइप के वेक्टर किए, और भी वेक्टर्स की टाइप्स होती है, बट उससे पहले मुझे कुछ और भी करवाना पड़ेगा। तो पहले हम वो करेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स करेंगे, और इनसे अलावा जो हम टाइप्स ऑफ वेक्टर करेंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपका ये पूछ सकते हैं, कोस एल्फा
कोस बीटा और कोस गामा, ये क्या होगा? कोसाइन एंगल पूछ सकते हैं। तो ए वेक्टर एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल है। ए वेक्टर आपका कितना है? 3i प्लस 2j प्लस k। तो इसमें आपको ये तीनों एंगल निकालने हैं, कोसाइन, अल्फा, बीटा, गामा। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालिए इसका। ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू जो होगा ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि k के साथ 1 है। तो कितना होगा? 9 प्लस 4 प्लस 1। तो ये कितना हो गया आपका? a का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13, 1 14, यानी 14 का अंडररूट हो गया आपका ये। अब ये कोस अल्फा बीटा गामा किस तरीके से निकालेंगे? तो पहले तो आप यूनिट वेक्टर निकालिए। यूनिट वेक्टर कितना हो गया आपका? 3i प्लस 2j प्लस k अपॉन अंडररूट 14। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a यूनिट वेक्टर इक्वल टू 3 बाय अंडररूट 14 ऑफ i प्लस 2 बाय अंडररूट 14 ऑफ j प्लस k बाय अंडररूट 14, यानी 1 बाय 14 इसके साथ अंडररूट है। तो ये जो है वो कोस अल्फा होगा, ये कोस बीटा होगा, ये कोस गामा होगा। बट इसमें i j k नहीं लेंगे, ये इंटू 1 है। तो कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? वो आ गई 3 बाय अंडररूट ऑफ 14। कोस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 बाय अंडररूट 14। और गामा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 बाय अंडररूट 14। तो इस तरीके से आप कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। So student, this is about the introductory part of the vector. So in the next lecture, we will do more numericals, more types of vector and lot of mechanism of vector in the next lecture. Okay, thank you.